गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राज पदियाल, who is a CEO and founder of Digital Gurukul. We all know that he is a great mentor, बहुत अच्छे friend, mentor, guru. He is a package in one. तो आज हम बात करेंगे डिजिटल गुरुकुल के नए हाइब्रिड फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में, और इसके साथ ताकि आप लोग इसके बारे में डिटेल में जान पाए, हमारे साथ है डॉक्टर राज पदियाल फिर से। तो सर, हाउ आर यू सर? I'm all fine and thank you for such a warm introduction and for using such a heavy words and I'm not that great mentor. It's just that it's part of my job and that is what I'm doing it since last 7+ years, and that is what we are doing it in Digital Gurukul over many years in transforming the career of students, working professionals, and that not only in Indore or MP or India but across the Asia. So the first thing we might want to know is, who is Dr. Raj Padial? Can you tell us something about yourself? So Dr. Raj Padial is a struggling entrepreneur and basically doing the job consistently 24/7, weekdays, weekends, and with the one aim and vision to transform the career of the students, because when I was in my college, I was in my school, I didn't get the opportunity. I was stuck into the traditional education stream, and I understand the importance. If I would have got that opportunity, I would have been at a different level. So I didn't have any mentor, I didn't have any family business background, but still it took me over 5-7 years to reach to this level. So I basically want the kind of the digital wave which has basically transformed all the businesses and how it is enabled the digital skill set. तो अभी डिजिटल स्किल सेट बहुत मैंडेटरी हो गई है हर एक बिजनेस के लिए। तो हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लोग ये चीज़ को जल्दी से जल्दी सीखे ताकि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके, एंटरप्रेन्योर बन सके, जॉब अच्छी सी कर सके, या फ्रीलांसिंग कर सके, या अपने फैमिली बिजनेस को ग्रो कर सके। तो बस इनकी यही सक्सेस के पीछे मेरा जो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होता है, इसी के पीछे मैं 24/7 लगा रहता हूँ, और यही मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। Sir, a compliment I have got, a common compliment डिजिटल गुरुकुल के बच्चों से बात करके मुझे मिला है कि कुछ भी हो जाए 24/7 रात सर अवेलेबल रहते हैं। आप कभी भी क्वेरी पूछ लो, इवन व्हेन बैच जब इनकी खत्म हो जाती है तब भी। आई थिंक दैट नो मेंटर कैन डू। बहुत मुश्किल है इतने सारे बैच के बीच में कॉन्स्टेंटली अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रहना। Sir, I recently got to know, and really very congratulations on that you have started your 100th batch. You have completed your 100th batch. How do you feel, sir? कैसा लग रहा है आपको? आई गेस ये मुझे टीम से पता लगा कि 100 बैच हो गया है, बट ऐसा लगा नहीं क्योंकि अभी तक बाल है थोड़े बहुत बच्चे, थोड़ा यंग भी दिख रहा हूँ मैं। टिपिकली व्हेन यू सी कि 100 बैच हुआ है तो यू हैव दैट पर्टिकुलर इम्प्रेशन कि यार मतलब बहुत ही सीनियर सिटीजन होंगे, बहुत ही सीनियर प्रोफेसर होंगे। तो ऐसा कुछ लगा नहीं कभी, बिकॉज वो जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई टीचिंग की। और आई गेस एट द एज ऑफ नाउ 31-32 I guess teaching is something that it is my passion. So the reason is passion कि ये चीज़ जो अभी मैं वही theoretical वही बुक्स वगैरह अगर मुझे पढ़ाने बोलो तो मैं मेरे ख्याल से 10 सेशन भी कवर नहीं कर पाता। But the reason that I completed the 100 session is because the passion that I have for digital and कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे दिल से बहुत कनेक्टेड है। मैं 10-15 साल से यही चीज़ें कर रहा हूँ। तो मैं ये पूरी इंडस्ट्री से, इकोसिस्टम से बहुत जानता हूँ, और यही चीज़ मैं लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। एंड टीचिंग इज बेसिकली अ जर्नी, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट 1 hour 2 hour सेशन, इट्स लाइक being there with the students 24/7, mentoring them, guiding them, so not only just digital but also towards the career. तो ये कहीं ना कहीं होता है। तो अगर आप ये चीज़ें काउंट करो तो द नंबर्स वुड बी 100 से और 0 एक ऐड हो जाएगा। बट yeah, I mean it feels very good and very proud. I hope I achieve a good number as well. Yeah. We hope the same, sir. कि और बहुत सारी 100s बैच पे हम आपको इंटरव्यू करें। तो सर, कैन यू रिसेंटली बहुत सुना है हमने डिजिटल गुरुकुल फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में। It is in very much trend. It is hybrid franchisee model by Digital Gurukul.
तो सर आप मुझे उसके बारे में और लिसनर्स को उसके बारे में प्लीज कुछ बता सकते हैं? When we started Digital Gurukul, we had a vision कि हम कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के करियर को ट्रांसफॉर्म करें, and we started with a very small classroom with a 800 square feet in Indore, and we struggled initially 6 months, 8 months, and then slowly and steadily with the जो हम क्वालिटी देते गए, तो हम लोगों को इंटर्नशिप, जॉब, लोगों के बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करते गए। तो स्लोली एंड स्टडीली ये जर्नी 2014-15 में जो शुरू हुई थी, ये 2022 में जाके एक बहुत बड़ा एक कारवा बन गया, जहाँ पे अभी तक हमने 44,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। ये पूरी जर्नी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स, बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हमारी जर्नी में कनेक्टेड हुए। एंड हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि we had to expand कहीं ना कहीं, and looking at the expansion we had two options। या तो हम बेसिकली ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजी दे, जहाँ पे कहीं ना कहीं अगर लेट्स से यू आर फ्रॉम दिल्ली, तो आप दिल्ली में फिजिकल सेंटर ओपन करो, आप वहाँ पे एक स्टाफ रखो, वहाँ पे ट्रेनर रखो, वहाँ पे ओवरहेड्स, वहाँ पे रेंट एंड एवरीथिंग। तो लॉकडाउन के पहले कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती थी। इस तरह नंबर ऑफ एडटेक कंपनीज हु आर रनिंग दिस करंट फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल। नाउ विद द कोविड-19 एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया, एजुकेशन कंजम्पशन है बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ। कोविड के पहले हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हम ऑनलाइन सेशंस हो भी सकता है, लाइव सेशंस हो भी सकता है, बट कोविड के बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई और लोग कहीं ना कहीं ये पैटर्न को समझने लगे। एंड तभी हमने कहीं ना कहीं देखा ये B2C में तो बहुत अच्छा रिवॉल्यूशन आ गया, बट व्हाट अबाउट B2B, बिकॉज दोज हु आर वांट टू बी अ पार्ट ऑफ डिजिटल गुरुकुल, बिकॉज अब तक हमको ही क्लासरूम के फ्रेंचाइजी के लिए मोर देन 200+ फ्रेंचाइजी इंक्वायरीज हमारे पास आई हुई थी, बट हमने कहीं ना कहीं ये चीज़ को ज़्यादा हमने तवज्जो नहीं दी। रीज़न इज कि हमको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दैट्स द रीज़न हमने वहाँ पे पॉज रखा। विद द कोविड-19 हमने देखा कि लोग कहीं ना कहीं डिजिटल की तरफ आ रहे हैं, लोग ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ाई करने के लिए उनको कोई झिझक नहीं है, कंसिडरिंग उनको क्वालिटी मेंटर मिले। So that was the first part of it. Second part was basically की इन्वेस्टमेंट पार्ट। तो हमने ये देखा कि टिपिकल जो क्लासरूम फ्रेंचाइजीज होती है उनकी कॉस्टिंग, उनका इन्वेस्टमेंट गोज अप टू समवेयर अराउंड 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख। वहाँ उसके बाद आपको सेटअप लेना है, ऑफिसेस लेने हैं, स्टाफ रखना है, रेंट रखना है, ये सारी चीजें रखनी है। और ये मॉडल में होता क्या था कि देयर वाज अ ह्यूज रिस्क कि यार अगर वो चीजें चली, वो चीजें नहीं चली, सपोर्ट मिलेगा फ्रेंचाइजर्स से, वो नहीं मिलेगा सपोर्ट, is it a good thing to do as well? So कोविड के बाद हमको ऐसा लगा कि why we keep that burden, so ये हम क्यों रखे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये चीज के अंदर थोड़ा एक इनोवेशन लेके आ सकते हैं, जहाँ पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टूडेंट एनीवेज टैबलेट से, लैपटॉप से चीजें पढ़ ही रहा है। डिजिटल इज बेसिकली जहाँ पे आप लैपटॉप से भी पढ़ सकते हो, कहीं पे भी पढ़ सकते हो, बिकॉज दैट इज व्हाट डिजिटल इज, राइटली। डिजिटल आपको एम्पावर करता है कहीं से भी कोई भी चीजें नॉलेज ग्रास्प करने के लिए। So that was the idea behind it. Then इसके ऊपर टीम ने 3-6 महीने वर्क किया, उसके ऊपर समझा कि इसके ऊपर क्या चीजें हो सकती है। जब हमारी टीम ने रिसर्च किया तब हमको पता लगा ऐसा कोई भी मॉडल इंडिया में वर्क ही नहीं कर रहा है। एवरीवेयर बेसिकली दे आर गोइंग अवे विद क्लासरूम फ्रेंचाइजी। So our team basically after the research launched the hybrid franchisee model. Now ये hybrid franchisee model जो है बेसिकली ये टीम ने फाइनली 15 अगस्त को इसको लॉन्च किया। एंड इसका जो बेसिक फंडामेंटल है कि आपको कोई ऑफिस नहीं चाहिए, ठीक है। सो ये सबसे पहले लोगों को क्वेश्चन मार्क होता है कि ऑफिस के बगैर फ्रेंचाइजी हो भी सकती है। सो ये डेफिनेटली हो सकती है। आपको कोई डेडिकेटेड ऑफिस स्पेस नहीं लेना है यहाँ पर। आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट जो है ये आपके आईफोन के कॉस्ट से भी नीचे हमने कर दिया। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि एक आईफोन के कॉस्ट के नीचे यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, यू कैन सेट बेसिकली योर करियर। एंड नंबर 3, अगर आप वर्किंग में हो, अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो वो भी आपको नहीं छोड़ना है। सो यू डोंट हैव टू टेक अ रिस्क इन इनिशियल डे, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क भी होता है। हमने ये भी उनको कम कर दिया कि आपको जॉब भी नहीं छोड़नी है, आपको अपना बिजनेस भी नहीं छोड़ना है, आप पैरेलली अपने फ्री टाइम में ये चीज को कर सकते हो। एंड प्लस बहुत सारी चीजें जो हम आपको आगे के सेगमेंट में बताएंगे। तो दैट वाज द आइडिया एंड फंडामेंटल बिहाइंड कि हम ये हाइब्रिड फ्रेंचाइजी मॉडल जो है ये कैसे हमने इंट्रोड्यूस मार्केट में किया। So the next thing I want to know is what is the eligibility criteria for this model?
टिपिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप ट्रेडिशनल एजुकेशन फ्रेंचाइज में अगर आप जाते हो तो दे गिव यू दिस एंटायर 2 पेजर 3 पेजर फॉर्म, जहाँ पे आपको आपका आपकी फैमिली के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, यू नीड टू बी MBA, यू नीड टू हैव अ 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस टू स्टार्ट अ फ्रेंचाइजी। बहुत सारी फ्रेंचाइजी में ये सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। नाउ डिजिटल के अंदर बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप हैज स्टार्टेड लाइक एनीथिंग। सो यहाँ पे 15 साल का बच्चा भी एंटरप्रेन्योर है, 20 साल का बच्चा भी एंटरप्रेन्योर है, बट अगर उसको कुछ फ्रेंचाइजी स्टार्ट करनी है तो ही नॉट गोना वेट फॉर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। तो हमने वो एज क्राइटेरिया भी हटा दिया कि अगर एक 12th पास स्टूडेंट भी हो तो भी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो, आप ग्रेजुएट हो फिर भी फ्रेंचाइजी ले सकते हो, अगर आप MBA परस्यूइंग हो तो भी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो, अगर आप हाउस वाइफ हो, यू आर वेरी टैलेंटेड, ठीक है, तो भी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो। सो यहाँ पे कोई भी एज बैरियर नहीं है, ठीक है। अगर आपका पैशन है, आपको कुछ लाइफ में करना है, आपको कुछ जीवन में अचीव करना है, आपको आपके कोई गोल है, कोई विजन है, तो डिजिटल गुरुकुल आपके विजन को हेल्प अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट बन सकता है यहाँ पे। एंड यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिकॉज एंटरप्रेन्योर बनने के लिए लोगों को लगता है फंडिंग चाहिए, आपको टीम चाहिए, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने सारी रिक्वायरमेंट को हटा दिया। आप खाली हमारी फ्रेंचाइजी से जुड़िए, फ्रेंचाइजी के पार्टनर बनिए और आपको कोई टीम की कोई चीज की जरूरत नहीं है, सारा सपोर्ट हमारी तरफ से मिलेगा। सो आपने क्वेश्चन पूछा कि एलिजिबिलिटी वाला, सो देयर इज नो एलिजिबिलिटी है, बट ऑल वी नीड इज अ पैशन and want to achieve something in their life. If you have these two qualities, definitely this is the only eligibility that we look for right now. That is really great, sir, that you have opened the doors. सबके लिए गेट खोले, anyone of any age can go for it. The next question is, sir, इनकी ट्रेनिंग और मार्केटिंग का कैसे सपोर्ट रहेगा डिजिटल गुरुकुल से? सी दैट इज, ये जो ट्रेनिंग और मार्केटिंग, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी फ्रेंचाइजी सक्सेस होने के लिए। बहुत हमने नॉट ओनली जस्ट एजुकेशन बट फूड में आप देख लीजिए, या तो फिर आप ट्रैवल में देख लीजिए, बहुत सारी फ्रेंचाइजी दी जाती है, बट बिकॉज वो पर्सन जो आपके साथ जुड़ रहा है, ठीक है, वो बहुत नया जुड़ रहा है, उनको नहीं पता आपके बिजनेस के बारे में, आपकी इंडस्ट्री के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, कैसे कस्टमर्स को लाया जाता है, ठीक है, बिकॉज यही चीज के लिए वो आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर उसको आता तो वो खुद ही कर लेता। द रीजन दैट इज कनेक्टेड कि आपको ये सारा सपोर्ट मिलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कहीं ना कहीं एक बार फ्रेंचाइजी ले ली, उसके बाद आपको ना तो सपोर्ट मिलेगा, ना तो ट्रेनिंग मिलेगी, ना तो कोई डेडिकेटेड सपोर्ट पैनल मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स लॉस मेकिंग थिंग फॉर द फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी। उसके बाद कुछ महीनों बाद चीजें बंद हो जाती है एंड देन ब्लेम इट ईच अदर। सो ये हमने एक्सपीरियंस बहुत सारे बार देखा है। सो दैट्स द रीजन व्हाट वी अंडरस्टूड कि जब भी कोई फ्रेंचाइजी हमारे डिजिटल गुरुकुल लेता है, दे बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली एंड वंस दे जॉइन इट वी बेसिकली गिव देम द ओरिएंटेशन। हम उनको ओरिएंटेशन में सारी चीजें बताते हैं, डिजिटल गुरुकुल के वैल्यूज, उसके विजन, हाउ वी स्टार्टेड, सो व्हाट डिजिटल गुरुकुल इज नोन इन द मार्केट ओवर द पास्ट ईयर्स, हमारी स्ट्रगल जर्नी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे प्रोग्राम जो हम चलाते हैं, प्रोग्राम की यूएसपी क्या है, हमारे प्रोग्राम के बेनिफिट क्या है, प्रोग्राम का कंटेंट क्या है, ये सारी चीज भी ब्रीफ करी जाती है। थर्ड इज डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए हम टीम को, उनको फ्रेंचाइजी पार्टनर को डेडिकेटेड हेल्प देते हैं, जहाँ पे आपके पूरे सेंटर को हमारे सोशल मीडिया पे विजिबिलिटी दी जाती है, वेबसाइट पे विजिबिलिटी दी जाती है, उनको बाकायदा सोशल मीडिया पे कैसे प्रमोशन करना है, कैसे उनको कैंपेन चलाना है, कैसे लीड्स लेके आ सकते हैं, कैसे ऑनलाइन चीजें करनी है, फेसबुक का कैसे यूज करना है, लिंक्डइन का कैसे यूज करना है। तो जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है उसको एक कॉन्फिडेंट फील होता है कि हाँ, मतलब मैं कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ के मैं कहीं ना कहीं बिजनेस को और ग्रो कर सकता हूँ। सो मार्केटिंग और ओरिएंटेशन ये डेफिनेटली रहता है। इनकेस अगर कुछ क्वेरीज या कंसर्न होता है तो मेरा नंबर होता है, हमारी टीम का नंबर होता है, सपोर्ट टीम का नंबर होता है, दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम एज वेल। तो उनको अगर कुछ भी क्वेश्चन क्वेरीज होती है, वी मेक श्योर कि ये सारी क्वेरीज हम ही ले लें, बिकॉज हाइब्रिड फ्रेंचाइजी का जो सबसे बड़ा यूएसपी है कि व्हेन यू टेक अ हाइब्रिड फ्रेंचाइजी आपको कोई ट्रेनिंग नहीं करनी है। फॉर स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट एनरोल होता है तो आपको कोई भी ट्रेनिंग नहीं देनी है, सारी ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। डेमो सेशन भी हमारी टीम ही ऑर्गेनाइज करेगी, पूरे सेशन हमारी टीम ही देगी, इंटर्नशिप भी हम ही करवाएंगे। तो जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है उससे जो बड़ा लोड है वो सारा हट चुका है। उसको खाली बस मार्केटिंग करनी है, उनको बेसिकली स्टूडेंट्स को काउंसिल करना है, स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड कराना है कि डिजिटल इंडस्ट्री में क्या स्कोप है। वन स्टूडेंट टेक्स द एनरोलमेंट तो उसके बाद की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजिटल गुरुकुल के कोर टीम की हो जाती है। एंड वी हैव अ प्रूवन एक्सपीरियंस ऑफ द 7 years, so that is nothing of concern for the franchisee partner and our team as well. So it's a very simple ball game कि आप हमारे साथ जुड़िए, पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से रहेगा।
आप बस लोगों को बताइए डिजिटल में क्या स्कोप अपॉर्चुनिटी है, वंस दे जॉइन एनी ऑफ अ प्रोग्राम यू स्टार्ट गेटिंग अ रेवेन्यू. इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज. That is a great plan, sir. I don't know how do you come up with such thing. So next question is कि इनका revenue कैसे इनको मिलेगा for the franchisee का क्या revenue होगा? Yeah, so जो franchisee partner है उनका जो revenue होगा that would be very simple and straightforward. कि फ्रेंचाइजी पार्टनर को अपने जो भी एरिया में, फॉर एग्जांपल अगर वो दिल्ली के राजौरी गार्डन पे अगर फ्रेंचाइजी लेते हैं तो मे बी वो आसपास स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग और जितने भी स्टूडेंट सेंटर है वहाँ पे जाएंगे, डिजिटल स्किल्स के बारे में बताएंगे कि डिजिटल स्किल्स सीखना क्यों जरूरी है. द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि इसके लिए जो है डिजिटल स्किल्स के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी नहीं है जैसे बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए होती है, बाकी स्ट्रीम्स के लिए होती है. यहाँ पे 10th का बच्चा भी कर सकता है, 12th का बच्चा भी कर सकता है, ग्रेजुएट भी कर सकता है, MBA कर सकता है. तो जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है उसके लिए ओपन, सारी चीजें ओपन है. उसके लिए हाउस वाइफ भी टारगेट ऑडियंस है, ग्रेजुएट भी टारगेट स्टूडेंट है, सभी टारगेट ऑडियंस है. नाउ जब भी वो उनको काउंसिल करता है, उनको कोर्स की ब्रीफ करता है, वो जब ये एडमिशन देता है तो एडमिशन का 15 to 30% जो है वो उनको बेसिकली रेवेन्यू मिलता है एंड दैट इज बेसिकली देयर इनकम. नाउ दिस इज द इनकम पार्ट. हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ये करी है कि उनकी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसका जो बैलेंस शीट होती है, ठीक है, जहाँ पे उनके एक्सपेंसेस और इनकम होती है, तो हमने एक्सपेंस वाला जो पार्ट है वो 95% से रिड्यूस कर दिया है. तो उसको कोई ऑफिस नहीं लेना है, तो ऑफिस नहीं है तो रेंट नहीं है, रेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ऑफिस ओवरहेड्स नहीं है, कुछ भी उसको हेडेक नहीं है. तो उसका 90 to 95% हमने जो एक्सपेंस है वहीं पे कम कर दिया. तो उसका जो रेवेन्यू होगा, ठीक है, मे बी 15 से लेकर 30% का रेवेन्यू है डिपेंडिंग ऑन द कोर्सेज. सर्टिफिकेट प्रोग्राम का अलग है, डिप्लोमा का अलग है, ऑल्ट MBA प्रोग्राम का अलग है. सो अकॉर्डिंगली उसको रेवेन्यू मिलते रहेंगे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर उसका एक अच्छा बेस बन जाता है, मे बी अगर उसने राजौरी गार्डन में लिया, अगर उसका एक अच्छा बेस बन जाता है तो मे बी हम कंसिडर कर सकते हैं उनको एक क्लासरूम फ्रेंचाइजी देने के लिए, बिकॉज उन्होंने एक अच्छा बेस बना लिया. नाउ दैट की पर्सन वुड बी मोर कॉन्फिडेंट ऑफ स्टार्टिंग अ प्रॉपर क्लासरूम फ्रेंचाइजी. सर इसके अलावा किसी की क्या इन्वेस्टमेंट रहेंगे इसके लिए फ्रेंचाइजी? इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. बाकी हमने जो देखा है बिजनेसेस में कि बहुत सारे बिजनेसेस जो फ्रेंचाइजी लेते हैं इसके अलावा भी उनको मार्केटिंग में, टेक्निकल में, प्रमोशन में, एडवर्टाइजिंग में, हर एक फेस्टिवल में एक पर्टिकुलर परसेंटेज उनके रेवेन्यू में से कट होता है एंड दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द फंड. तो ये हमने देखा है कि ये भी कहीं ना कहीं एडिशनल इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी पार्टनर को पहले करने पड़ते थे और लोग कर भी रहे, बट दैट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फ्रेंचाइजी पार्टनर. सो व्हाट वी हैव मेड श्योर एंड वी हैव कमिटेड टू आवर फ्रेंचाइजी पार्टनर कि वंस यू पे द फ्रेंचाइजी फी, ठीक है, आपको उसके अलावा एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है. हाँ, अगर आपको लग रहा है ऐसा कि आपको लोकल एरिया में मार्केटिंग करने के लिए अगर कुछ सेमिनार्स करने हैं, कुछ पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है या कोई भी एक्टिविटी करनी है, बिकॉज लोकल एरिया की वर्किंग आपको ज्यादा पता है रेदर देन द कोटी. सो मे बी आप जो चीजें करोगे एक्टिविटीज, उससे आप ही का रेवेन्यू बढ़ेगा, बिकॉज अगर आपको 25 to 30% रेवेन्यू मिल रहा है तो यू डोंट माइंड स्पेंडिंग 5%, 10% ऑफ द रेवेन्यू ऑन द मार्केटिंग साइड. तो यहाँ पे आपका बिकॉज फिक्स ओवरहेड हमने कम कर दिया है, तो आप 5 से 10% स्पेंड करने के लिए आपके लिए भी कुछ ज्यादा इशू नहीं होगा. बट हाँ, वो कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग हम देंगे, डिजिटल पे कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग हम आपको देंगे. तो ये चीजें है, उससे ज्यादा हम बेसिकली उसमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज चार्ज करना, ये लेना, ऐसा कोई भी सिस्टम हमने कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया इन द हाइब्रिड फ्रेंचाइजी सिस्टम. ओके सर, अगर किसी को अपने लोकेशन के लिए ये फ्रेंचाइजी लेनी हो तो वो कैसे उसकी फ्रेंचाइजी लेंगे? ओके, सो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. सो मैं पर्सनली ये फ्रेंचाइजी सिस्टम को मॉनिटर कर रहा हूँ. बीइंग अ फाउंडर, आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट द गिविंग अवे द फ्रेंचाइजी टू अ राइट कैंडिडेट. इवन दो यू आर एलिजिबल, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कितने पैशनेट हो, कितना आपको चीजें लाइफ में करनी है. सो अभी मैंने मेरा ही नंबर फ्लैश किया, दैट इज 9022888883. अगर आपको फ्रेंचाइजी अपने लोकेशन पे लेनी है तो आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हो. उसके बाद हमारे digitalgurukul.in वेबसाइट पे एक पेज है टेक अ फ्रेंचाइजी, तो एक फ्रेंचाइजी पार्टनर का पेज है, वहां पे जाके आपको ये सारी डिटेल तो मिल ही जाएगी. बट इन केस यू आर लुकिंग फॉर इट तो ये कॉल और व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो. कांटेक्ट करने के बाद थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होगा, फिर हमारी टीम आपको कंप्लीट प्रपोजल भेजेगी. प्रपोजल भेजने के बाद अगर आपको चीजें सही लगती है, आप फ्रेंचाइजी फीस की अमाउंट ट्रांसफर करके यू कैन ज्वाइन द डिजिटल गुरुकुल फैमिली एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर. As Raj sir has told you कि किसी भी क्वेरी के लिए you can contact our the number जो स्क्रीन पे आया है.
कोई भी क्वेरी हो यू कैन ऑलवेज रीच राज सर। एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत ही एक अच्छा और यूनिक प्लान, लाइक ऑलवेज डिजिटल गुरुकुल जैसे क्यूबिक कॉइन के साथ आया है, वैसे ही ये एक बहुत यूनिक प्लान है, लोगों के सबके करियर के लिए एक बहुत अच्छा वो रहेगा। अगर कोई हार्ड वर्क। आपने एक सवाल तो पूछा ही नहीं हमसे क्या सर? कि फाइनली जो लोगों के दिमाग में, सर आपने सब चीज तो बता दी, बट इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितना करना रहेगा, ठीक है। सो जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, ठीक है, आई थिंक अभी जितने भी हमारे लिसनर्स यहाँ पे सुन रहे हैं सबके दिमाग में यही सवाल है कि सर आपने बता तो दिया कि एक आईफोन से कम की कॉस्टिंग रहेगी, बट रहेगी क्या। सो मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जो टिपिकल ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजीज होती है, टिपिकल ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजीज जो होती है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है अराउंड 2 लाख रुपया 3 लाख रुपए से। और मे बी अगर आप बहुत प्रॉपर क्लासरूम फ्रेंचाइजीज लेने जाएंगे, दैट विल कम एट 15 लाख 20 लाख रुपीज, प्लस आपको बहुत ज्यादा हेडेक करनी पड़ती है। नाउ व्हाट वी हैव डन इन द हाइब्रिड फ्रेंचाइजी मॉडल, कि जो हाइब्रिड फ्रेंचाइजी है इसका आपको जो करंट कॉस्ट है दैट इज 2 लाख रुपीज जो आपको देना है। बट अभी बिकॉज वी आर गोइंग विद अ फेस्टिवल ऑफर फॉर द लिमिटेड पीरियड फॉर द फर्स्ट 50 फ्रेंचाइजीज, हमने इसकी प्राइसिंग रखी है ओनली 75,000 रुपीज, सिर्फ 75,000 रुपीज फॉर 5 ईयर, ठीक है। आपको 5 साल के लिए मिलती है, आपको देना है सिर्फ 75,000 रुपीज ओनली। 75,000 रुपीज आपने फ्रेंचाइजी फीस दी है और यू बिकम अ फ्रेंचाइजी पार्टनर ऑफ डिजिटल गुरुकुल फॉर 5 ईयर्स। और ये भी चीज है कि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट विद इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स कवर हो जाएगा अगर आपने चीजें करी है, विच इज द लोएस्ट इन एजुकेशन इंडस्ट्री। तो ब्रेक इवन पॉइंट ये होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो आपका रिटर्न जो है जो 75,000 कब तक कवर हो सकता है। तो जितनी भी टिपिकल एजुकेशन कंपनी जो आपको बोलती है 1 साल 2 साल का मिनिमम पीरियड होता है, हम आपको बताते हैं कि अगर आपने सही तरीके से काम किया, अगर आपने जेन्युइन तरीके से हार्ड वर्क तरीके से चीजें करी, तो आप 3 महीने के अंदर ही आपका पूरा इन्वेस्टमेंट कवर कर लोगे। उसके बाद बाकी के जो 4 साल 4.5 साल है, जितना भी आप काम करोगे, दैट वुड बी योर प्योर प्रॉफिट। So I don't think person just have to pay 75,000, एक छोटा सा small area, some dedication, and then that person will be learning really good marketing techniques with a really great institution and with your guidance personally। मतलब ये तो win-win situation हो गया अगर कोई भी इसके लिए enroll करेगा तो। And plus हम उनको proper तरीके से सिर्फ ये नहीं दे रहे, हम उनको proper holdings भी देंगे, उनको brochures भी देंगे, उनको विजिटिंग कार्ड भी देंगे, उनको मार्केटिंग की चीजें भी सिखाएंगे, और प्लस जो कॉम्प्लीमेंट्री है एक सेलिब्रिटी वीडियो भी वो पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी पार्टनर के लिए बनेगा जब वो फ्रेंचाइजी वहां पे लेता है। सो वो लेवल का सपोर्ट जो है हम वो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर को देने वाला है, एंड दैट वुड बी फॉर द फर्स्ट 50 फ्रेंचाइजी। तो अगर आप ये सुन रहे हो, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल नहीं सकती है। अक्रॉस द इंडिया वी हैव ऑलरेडी क्लोज डाउन मोर देन 5 फ्रेंचाइजी इन जस्ट द 3 days ऑफ द लॉन्च। तो मे बी ये हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन है, और अगर आप चाहते हो कि आप फ्रेंचाइजी पार्टनर बनना चाहते हो डिजिटल गुरुकुल के, तो ये नंबर पे कॉल कर सकते हो, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, सारी चीजें देखो। अगर कुछ डाउट है एनी टाइम पहले कॉल करो, 1 बार 2 बार, जितनी भी बार आपको डाउट सॉल्व करना है पहले खुद क्लियर हो जाओ, और फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ और मुझे कुछ करना है, देन आई गेस जस्ट बहुत इजी तरीके से यू कैन स्टार्ट। That is great sir, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, एंड आई होप जल्दी लोग एनरोल करेंगे इस चीज के लिए, बिकॉज 5 ऑलरेडी आपके पास आ चुकी हैं सर फ्रेंचाइजी, तो आई थिंक 50 इज नॉट अ बिग डील। बहुत जल्दी डिजिटल गुरुकुल के लिए तो इट्स piece of cake I think, because it's always a win-win situation for the person who is enrolling. So wish you all the very best sir. We wish you all the very best. I hope कि आप इतने सारी फ्रेंचाइजीज करके और ढेर सारे 100 बैचेस करके बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हम डिजिटल गुरुकुल के पेज पे पढ़ें और आपके ऐसे इंटरव्यू करते रहे, ताकि रीडर्स को, लिसनर्स को आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता रहे। Thank you so much Gulshan. Thank you so much Gulshan. Pleasure interacting with you. Same here sir, same here. Thank you.